In this lecture, we will discuss the solution of difference equation by using Z transform. Okay, the solution of difference equation by using Z transform. Okay, this is application part of Z transform. Why Z transform is important? Okay, तो उसका application क्या है? For finding solution of for finding solution of difference equation, for this purpose we have to use the Z transform. Okay, now the definition of difference equation. First of all, the definition of difference equation. Definition of difference equation: an equation or the relation between f of k comma f of k plus 1 comma f of k plus 2 dot 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 is called the difference equation. Is called the difference equation. Okay, क्या है difference equation? The relationship between f of k comma f of k plus 1 comma f of k plus 2 dot 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 is called the difference equation. Okay, वहाँ पे क्या जाएगा? f of k है, f of k plus 1 है, f of k plus 2 है. Okay, in difference equation. Okay, now we have to find solution of difference equation by using Z transform. Okay, तो some important remark first, क्या है रिलेशन? देखो, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस f ऑफ k, ये मालूम है आपको सबको. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस f ऑफ k इज इक्वल टू f ऑफ z. उसका Z ट्रांसफॉर्म क्या आता है? f ऑफ z. ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस दिस f ऑफ z इज कॉल्ड Z transform of the sequence f of k. Okay, then same the Z transform of the sequence f of k plus 1. The Z transform of the sequence f of k plus 1 is equal to z into f of z minus z into f of 0. Okay, this is second formula. Z transform of the sequence f of k plus 1 is equal to z f of z minus z f of 0. Okay, now third formula, Z transform of the sequence f of k plus 2. Z transform of the sequence f of k plus 2 is equal to z square f of z minus z square f of 0 minus z f of 1. Okay, this is Z transform of f of k plus 2 up to dot dot dot, just like this. यहाँ पे k plus 3 आ गया, k plus 4, we have to do same things. Okay, now also the Z transform of the sequence f of k minus 1, and Z transform of the sequence f of k minus 1 is z raised to minus 1 f of z. Z raised to minus 1 f of z. Also the Z transform of the sequence f of k minus 2 is z raised to minus 2 f of z. Z raised to minus 2 f of z dot 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 up to this. Okay, तो देखो, for finding solution of difference equation we have to use Z transform. Okay, this is application part. Okay, तो क्या है difference equation? The relationship between f of k plus 1, f of k plus 2 is called difference equation. Then we have to use some basic formula. तो first formula क्या है? Z transform of f of k is equal to f of z. Okay, then second formula, Z transform of f of k plus 1 is equal to z f of z minus z f of 0. Then Z transform of f of k plus 2 is equal to z square f of z
माइनस जेड स्क्वेयर एफ ऑफ 0 माइनस जेड एफ ऑफ 1, ओके, अप टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 0, दिस इज योर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन होगी, दिस इज योर ऑल्सो गिवन कंडीशन, दीज आर कॉल्ड द इनिशियल कंडीशंस और द बाउंड्री conditions, okay, these are the basic part for finding solution of difference equation, okay. Now we will discuss the examples on that topic. So example first, we have to use this same in your example, okay. Example first, obtain f of k ऑप्टेन एफ ऑफ के, उसका मीनिंग क्या है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के गिवन दैट एफ ऑफ के प्लस 1, एफ ऑफ के प्लस 1 प्लस 1/2 एफ ऑफ के प्लस 1/2 एफ ऑफ के is equal to 1/2 bracket raised to k comma k greater than or equal to 0 and one initial condition is given, that is f of 0 is equal to 0. This is your question, okay. In your exam यहाँ पे क्वेश्चन 100% आएगा, ओके, 100% क्वेश्चन आता है finding solution of difference equation by using Z transform. Here we have to find value of f of k. कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, we have to do same process, okay. We have to find the value of f of k and this is your difference equation. वो क्या है difference equation, यहाँ पे k क्या है, k is greater than or equal to 0 and f of 0 is 0. तो देखो solution, in solution given equation is, गिवन इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन एफ ऑफ के प्लस 1 प्लस 1/2 एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट रेस टू के। यहाँ पे के क्या है, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। जो भी इक्वेशन दिया है फर्स्ट राइट इक्वेशन एज इट इज, फर्स्ट राइट इक्वेशन एज इट इज। नाउ सेकंड, अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म, अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म, अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म, तो क्या मिलेगा, बाय यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। यहां पे क्या जाएगा, जेड एफ ऑफ के प्लस 1 प्लस यहां पे 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 जेड एफ ऑफ के प्लस यहां पे सीक्वेंस है एक्चुअल में प्लस और इजिकल टू, हाँ यहां पे इजिकल टू जेड 1/2 रेस टू ब्रैकेट रेस टू के, ओके। अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी गिवन है एज इट इज लिख दो। इन सेकंड स्टेप अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म टू दी बोथ द साइड, ओके। यहाँ पे वी हैव टू यूज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। देन अभी देखा है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस 1, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस 1, आंसर क्या आता है, क्या आता है आंसर, और कंसिडर, आई विल राइट वन स्टेप, consider Z transform of f of k is equal to f of z and Z transform of f of k plus 1 is equal to क्या आता है उसका आंसर, Z f of z माइनस Z f of 0, ओके ओके, दिस इज योर जेड ट्रांसफॉर्म। अभी जो हमने देखा है वही। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या जाएगा, इक्वेशन 1 यहां पे क्या जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस 1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, जेड एफ ऑफ जेड, दिस इज जेड एफ ऑफ जेड माइनस जेड एफ ऑफ 0, ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ जेड एफ ऑफ के प्लस 1/2
z transform of f of k, this is your f of z is equal to z transform of 1 by 2 bracket raised to k, 1 by 2 bracket raised to k or a raised to k, just like a raised to k, 1 by 2 is a raised to k and k greater than or equal to 0, उसका आंसर क्या मिलता है z डिवाइड बाय z माइनस a. ओके, दिस इज जस्ट लाइक a रेज टू k, तो यहाँ पे a क्या है 1 बाई 2, तो उसका क्या जाएगा z डिवाइड बाय z माइनस 1 बाई 2. ओके, लास्ट लेक्चर में वो हमें डिस्कस किया था. ओके, देन पुट वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा f ऑफ 0 0, हियर वी गेट 0. देन नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा z f ऑफ z माइनस 1 बाई 2 f of z is equal to z divided by z minus 1 by 2. Okay, now take f of z common from this, take f of z. Okay, take f of z, तो क्या मिलेगा, I will take f of z common here, I will write here, तो क्या जाएगा यहाँ पे take f of z common from both this, from this side, क्या मिलेगा f of z in bracket, यहाँ पे क्या बचेगा z माइनस 1 बाई 2, z माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा z डिवाइड बाय z माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z डिवाइड बाय z माइनस 1 बाई 2. ओके, यहाँ पे सबको समझ में आता है. यहाँ पे वी हैव टू यूज द z ट्रांसफॉर्म. ओके, z ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई z ट्रांसफॉर्म टू दी बोथ दी साइड. z f ऑफ k क्या जाएगा f ऑफ z एंड z f ऑफ k प्लस 1 क्या मिलेगा z f ऑफ z माइनस z f ऑफ 0. ओके, z f ऑफ z माइनस z f ऑफ 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा दिस f ऑफ 0 इज f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आती है द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, यहाँ पे दी है वैल्यू ऑफ दिस 0. ओके, तो वी गेट दिस. ओके, देन टेक f ऑफ z एज कॉमन, टेक f ऑफ z एज कॉमन, f ऑफ z कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या है 0, वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 बाई 2. ओके, प्लस 1 बाई 2 f ऑफ z, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 1 बाई 2 f ऑफ z. टेक f ऑफ z आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा z प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा z प्लस 1 बाई 2. ओके, z प्लस 1 बाई 2. नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ z फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्या मिलेगा f ऑफ z इज इक्वल टू z डिवाइड बाय दिस गोज टू दिस साइड, किस में जाएगा इन डिवीजन 1 बाई 2 डिवाइड बाय z माइनस 1 बाई 2. ओके, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सॉल्विंग दिस. इन लास्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस. ओके, तो क्या जाएगा f ऑफ z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय z प्लस 1 बाई 2 into z minus 1 by 2. Use partial fraction here. Okay, in last here I will write directly, but in last lecture we will discuss, we have discussed already about that. Okay, तो क्या जाएगा उसका partial fraction, this is 1 upon z minus 1 by 2 minus 1 upon z plus 1 by 2. This is 1 upon z minus 1 by 2 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बाई 2. ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है हमने सब पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस. दिस इज f ऑफ z डिवाइड बाई z. देन दिस z गोज टू दिस साइड, क्या जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू z डिवाइड बाय z माइनस 1 बाई 2 माइनस z डिवाइड बाय z प्लस 1 बाई 2. ओके, यहाँ पे क्या किया है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ अप्लाई, हाँ यहाँ पे क्या किया था हमने अप्लाई z ट्रांसफॉर्म. नाउ वी आर टू अप्लाई इनवर्स z ट्रांसफॉर्म टू दी बोथ साइड. अप्लाई इनवर्स z, अप्लाई इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, अप्लाई इनवर्स z ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ पे क्या जाएगा z इनवर्स f ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा z इनवर्स z डिवाइड बाय z माइनस 1 बाई 2
माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, जेड इनवर्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड प्लस 1/2. ओके, अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म. देन टेल मी द जेड इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड. क्या मिल जाएगा आंसर, एफ ऑफ के. दिस इज योर एफ ऑफ के. आई विल राइट हियर दिस जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड इज एफ ऑफ के इज इक्वल टू inverse z transform of z divided by z minus 1/2. in last lecture we have to discuss. यहाँ पे क्या है, अल्फा 1, दिस इज योर अल्फा 2. ओके, तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है 1/2, z डिवाइड बाय z माइनस a, z डिवाइड बाय z माइनस a एंड k ग्रेटर देन 0. एट दैट टाइम f ऑफ k क्या मिलता है 1/2 ब्रैकेट रेज टू k. तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 ब्रैकेट रेज टू k माइनस यहाँ पे क्या है -1/2. ओके, जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए, जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए, तो ये क्या जाएगा -1/2 एंड के ग्रेटर देन 0. तब क्या मिलेगा हमें -1/2 ब्रैकेट रेज टू के कॉमा के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के. ओके, दिस इज योर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के. तो देखो क्या करना है, दिस इज योर गिवन डिफरेंस इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, देन सेकंड राइट ऑल दिस वैल्यू जो भी मिलेगी फार्मूले से. फर्स्ट अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म, दिस इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट. नाउ सेकंड स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड. फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, दिस इज योर स्टेप नंबर सेकंड. देन स्टेप नंबर थर्ड, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया. देन लास्टली अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म. लास्टली अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, we get value of f of k. Okay, this is all about the solution of difference equation by using Z transform. Okay.